Good evening, sir. Yes. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, everyone. Please, everyone, switch on your cameras. And so पिछली क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस इन पैरेलल कर रहे थे ना. Yes, sir. सर हीट जनरेटेड भी है इसमें. हाँ, इसमें हीट जनरेशन इसके बाद ही है. हीट मतलब एनर्जी और पावर, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में. उसी में हीट एनर्जी जो जनरेट होता है रेजिस्टेंस में जब करंट पास करता है, तो वो वाला पोर्शन उसका. ओके, सो रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, देखो हम लोग पिछली क्लास में किए थे कि अगर if there are two or more than two resistances connected in parallel, so the ends of these resistances, they are joined together. So ends of these resistances are joined together. So what will happen? All these three resistances, they will have so they will have same potential difference across it. Why? Because all the three ends of these resistances, one end is connected to one point and the other end, each of the other end of the resistances are connected to other point. So because these are common points in which resistances are connected across, the potential difference across these resistance will remain same. Okay. So जैसे वहां पे करंट सेम था जब सीरीज में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करते थे, जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस. And then we have the current, the total current, let's say is I. So current in each of these branches, let's say is I1, I2 and I3. So current in each of these branches, I1, I2, I3 are different. So voltage is same in each of these, right? But current is different in each of these. So the reciprocal, अब इसमें जो equivalent resistance होता है, अगर हम इन तीनों resistances को, अगर इस पूरे combination को हम लोग connect करें, right? So if we connect this whole three resistances, replace this whole three resistance by a single resistance, let's say RP से हम लोग सेपरेट इसको ये कर देते हैं, तो 1 by RP will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R. So this is the relation between equivalent resistances of resistances connected in parallel and individual resistances. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now we'll do the derivation of this. We did in the last class also. I'll just quickly again sum it up. So let's say the total current I which is flowing in this is I will be equal to
this is being divided into three parts, I1, I2 and I3. So the net current I will be equal to the sum of these three resistances, I1, I2 and I3. अब ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया. Now what we are doing, what we are saying, कि replace this whole thing by a single resistance whose value is Rp. Then that single resistance, because it would be connected through the same potential difference V, so we can write the current passing through the circuit in that case. मान लो हम लोगों ने एक सिंगल रेजिस्टेंस Rp से रिप्लेस कर दिया है और हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही उसके अक्रॉस लगा रहे हैं, वोल्टेज सोर्स सेम लगा हुआ है उसके अक्रॉस. I will be equal to V upon Rp. This is equal to I1. अब let's say because मैंने कहा कि R1, R2, R3 तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, I1 will be written as V upon R1 because R1 has the same potential difference V across it. The current passing through R1, which is I1, is V upon R1. Is this point clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. The current passing through the second one is V upon R2 and current passing through the third one is V upon R1. Now, so what you will do, you will take V as common in both LHS and RHS. So V into 1 by Rp is V into, common ले लिया 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R2. ये V और ये V cancel हो गया. So this is equal to 1 upon Rp is 1 upon R1, 1 upon R2 and 1. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. It's clear. Everyone written it already? I think the Yes, sir. last class only you would have written it, right? Yes, sir. So same thing is mentioned here. जो मैंने बताया अभी वही same चीज यहाँ पे लिखा है. अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, राइट? सो क्वेश्चंस, अच्छा एक और फॉर्मूला हम लोग कर लेते हैं. When two resistances are connected in parallel, right? So let us do that formula first. When two resistances are connected in parallel. Why I'm telling you this formula? Because we'll be using it a lot, right? तो बार बार रेसिप्रोकल निकाल के दोबारा रेसिप्रोकल निकालना ना बहुत ट्रबलसम है. उससे अच्छा आप ये देखो, अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है, मान लो एक का रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेट्स से Rp हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 by Rp is 1 by R1 प्लस 1 by R2. अब इसका एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? R1 R2 और इधर हो जाएगा R2 प्लस R1, राइट? तो Rp रेसिप्रोकल ले लो फिर से दोनों तरफ, so you will get Rp is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. So this is the formula which I was talking about. सर तो ये टेस्ट में यूज कर सकते हैं फॉर्मूला? हाँ, क्यों नहीं यूज कर सकते? दो रेजिस्टेंसेस अगर कनेक्टेड है पैरेलल में तो यूज दिस फॉर्मूला, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला. Rp is 1 by Rp is equal to R1 R2 by R1 plus R2. Sir, even in the board exams? Yes, yes. Okay, sir. This is a standard formula. मतलब अगर हमारे पास लेट से 2 ओम है और यहाँ पे एक 7 ओम का रेजिस्टेंस है और हम लोगों को पैरेलल इसका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस Rp निकालना है, तो Rp क्या हो जाएगा? R1 R2 by R1 plus R2 हो जाएगा. सो ये क्या हो गया? 2 into 7 by 2 plus 7 हो गया, राइट? 2 into 7 है 14, 2 plus 7 हो गया 9, 14 upon 9 है ना? तो ये कैलकुलेशन देखो इजी हो गया, इससे हो गया नहीं इजी? Yes, Yes. sir.
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. मेहुल, अतुल और स्वयं अपना अपना कैमरा ऑन करें। ओके, अच्छा एक और फॉर्मूला करते हैं। When two or more resistances of equal value are connected in parallel. So दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, मान लो हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस है, ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है, इन सब का इंडिविजुअल वैल्यू R, R और R। So अब अगर हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है 1/RP, दिस विल बी इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R हो जाएगा ना? तो इससे क्या हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 3/R हो जाएगा। सो RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. एक और करो तब तुमको पैटर्न समझ में आ जाएगा। अब मान लो हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस बस होते हैं और ये दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं और ये अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R विच इज 2/R। इससे RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो दो रेजिस्टेंसेस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2, अगर 3 रेजिस्टेंस है R/3। तो इसका मतलब अगर n रेजिस्टेंसेस होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, R/n. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में हो जाएगा R/n। सो RP इज इक्वल टू R/n। तो यहाँ पे क्या होता है, n रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होता है, 1 2 3 और इस तरह से चलता जाएगा और बाद में nth रेजिस्टेंस। सो n रेजिस्टेंस each of value कैपिटल। क्लियर बच्चों? Yes, sir. भी क्लियर सबने? Written, sir. तो ये सब कॉन्सेप्ट जानोगे फिर न्यूमेरिकल्स करने में आसानी हो। सर 1 मिनट अभी हटाना मैं। हाँ लिख लो। मानविक गुस्से में क्यों है? मानविक यस सर। गुस्से में क्यों है? सर कुछ नहीं। हाँ गुस्से में मत रहो, हंसते रहो। यस सर हो गया। केवल तुम्हारा कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा बेटा? सर ऑन तो है। हाँ ऑन है, किसको दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, और किसी को दिख रहा हो तो पता नहीं। मिस्टर इंडिया वाला घड़ी तो नहीं पहन लिया? 1 सेकंड सर देखता हूँ। मिस्टर इंडिया देखा है तुमने? हाँ सर। हाँ तो घड़ी पहनता था अनिल कपूर तो गायब हो जाता था। बचपन मेरा इसी में बीता, सोच सोच के काश मेरे पास भी ऐसा घड़ी होता और हम क्लास से गायब हो जाते। मेरे पास तो आ नहीं पाया, क्या पता तुम्हारे पास पहुंच गया। अरे अतुल्य बेटा, तुमने तो ऐसा जो सेटअप कर रखा है ना, तो एकदम तुमको तो हम नहीं देख पा रहे, पीछे जो ट्यूबलाइट है उसी को देख पा रहे। 1 सेकंड सर मैं चेंज करता हूँ। सेटअप अच्छा सेटअप कर रखा है। हरित भैया कैमरा वैमरा ऑन होगा आज के डेट में? सर 2 मिनट हाँ, कर रहा हूँ। कर लो।
चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को लेके अगर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो बड़े इजीली बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? In the circuit diagram given in figure below, suppose the resistors R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor. Right? So see, we have these values given as पहले वाले resistor का 5 ohm, दूसरे का 10 ohm और तो तीसरे मुझे एक चीज पूछना है, कैसे कि जो आपने अभी फॉर्मूला बताया कि अगर दो रजिस्टर्स सीरीज में पैरेलली कनेक्टेड है सर्किट में सर, तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं सर। जैसे कि इसमें 3 है तो सर हम लोग R1 और R2 को 2 लेके फिर उसके बाद रजिस्टर पैरेलल में R3 कर सकते हैं वैसे। वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा 1/R1 1/R2 1/R3 करके कर लेना, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। सर लेकिन पॉसिबल है वो? हाँ क्यों नहीं, दो को पहले पैरेलल कर लो फिर तीसरे के साथ पैरेलल कर लो। अच्छा, अब ये कह रहे हैं द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर निकालने बोल रहा है, और हम लोग को जो है बैटरी ये कनेक्टेड है 12 वोल्ट से। तो हम लोगों को ये पता है भाई करंट सब में अगर निकालना है, I1 मान लो पहले निकालना है, तो I1 क्या हो जाएगा V/R1। V तो सेम है ना सब में, बिकॉज पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन ईच अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टर, राइट? सो Yes, दिस sir. 12/5, right? So this is 2.4 ampere. I2 is equal to V/R2, that is 12/10, 1.2 ampere. तीसरा है I3 is equal to V/R3, 12/30, so 1.2 by 3 is 0.4 ampere. क्लियर है सभी को? तुम लिख लेना, since resistances are connected in parallel, since resistances are connected in parallel, potential across each resistor will remain same. Potential across each resistance will be same. क्लियर बच्चों? Yes, sir. बी Yes, sir. पार्ट कह रहा है टोटल करंट इन द सर्किट। हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने। I सर इज इन इक्वल, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल करंट नहीं आ जाएगा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, फारसी लिख रहा हूँ। वो फॉर्मूला मैं भी तो वही बोल रहा हूँ भैया कि सबको ऐड कर देंगे तो टोटल करंट पता चल जाए, है ना, इंडिविजुअल करंट्स को। तो मतलब 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो दिस इज 1.6 प्लस 2.4 इज 4 हो गया, है ना? तो ये 4 एम्पियर है। तीसरा पार्ट कह रहा है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस करने के लिए ना आर पी इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल करंट निकाल। तो V बाय I कर लोगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट बाय 4 एम्पियर इज इक्वल टू 3 ओम। इसको हम इंडिविजुअली ऐसे भी कर सकते थे कि 1 बाय RP, ये सेकेंड मेथड है कि 1 बाय RP इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 बाय RP इज 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 30। एलसीएम ले लेते हैं 30, 5 6 10 3 31। सो ये हो गया 1 बाय RP। तो ये हो गया 10/30 विच इज 1/3। RP इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आया था ना उसको वैसे भी निकाल सकते हो।
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और जब ये आरपी निकाल लेते तो नेट करंट I इज इक्वल टू V बाय आरपी करके भी निकाल सकते हैं। V अपॉन आरपी, V था हमारा 12 और आरपी है 3, तो नेट करंट 4 एम्पियर हो। तो ये जो हम लोग यहाँ पे ऐड करके निकाले थे ना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऑपोजिट वे में भी कर सकते थे। हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते और बाद में करंट निकालते। यहाँ पे हम लोगों ने पहले करंट निकाला सबको ऐड करके, I1 I2 I3 को ऐड करके, और बाद में जाके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? सुन रहे हो? यस सर। ऑफ कर ले रहे हो बार बार कैमरा? क्या सर? तुमने 1 सेकंड के लिए बस कैमरा ऑन किया और फिर तुमने ऑफ कर दिया। सर मैं कर लेता हूँ 2 मिनट। ऑन ही रखो ना, बार बार बोलना पड़ता। सब ये सबको समझ में आ गया? अद्वित आप सुन रहे हैं? अद्वित हाँ जी सर। कहाँ खो गए हो बिल्कुल एकदम नीचे? यू आर लिसनिंग राइट? यू आर अंडरस्टैंडिंग? Yes sir. Yes sir, I understand. ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप सबने लिख लिया है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये जो है ना कॉम्बिनेशन शुरू हो गया, ठीक है? देखो यहाँ पे R1 10 ओम है, ये एक लाइन से लिखना शुरू करते हैं। ये हो गया 10 ओम R1 और R2 इज इक्वल टू 40 ओम, R3 is equal to 30 ohm, R4 is equal to 20 ohm, and R5 is equal to 60 ohm. And a 12 volt battery is connected. So this whole battery is 12 volt. Now calculate the total resistance in the circuit. ये resistance कैसे निकालेंगे? टोटल कौन बताएगा मुझे? किसको आता है? सर मैं मानविक। मानविक बताओ। सर पहले हम लोग R1 और R2 का वैल्यू निकालेंगे पैरेलल वाला, और फिर सर R3 R4 R5 का निकालेंगे और उनको सीरीज वाले फॉर्मूले से ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। भाई क्या है यहाँ पे, ये जो दो रेजिस्टेंसेस हैं, these two resistances are connected in parallel. So this is first combination. Second combination is these three resistances all again connected in parallel. And this first combination and the second combination, let's say इसका वैल्यू RP1 है, इसका वैल्यू RP2 है. These two resistances when they are replaced by single resistances, so यहाँ पे हम लोग RP1 लिख देंगे और बाद में जाके यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लिया RP2 से. अब जो ये बैटरी कनेक्टेड होगा 12 वोल्ट का, तो जो करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा सेम करंट इसमें भी फ्लो कर रहा होगा. तो these two resistances ये क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है. Okay, sir. Did everyone get the concept? So the first combination of two resistances R1 and R2, they are in parallel. Three resistances R3, R4 and R5, they are also in parallel. But both these combination together are in series. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बहुत बढ़िया. So अब यहाँ पे देखो ना, वो फॉर्मूला लगा लेते हैं. ये दो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रटे हैं तो भाई लगाएंगे कहीं ना कहीं. R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा वैल्यू? 10 into 40 divided by 10 plus 40. So this is 400 by 50, that is 80. Sorry 8. ये 8 हो गया. RP1 का वैल्यू 8 हो. तुम ऐसे भी निकाल सकते थे. 1 by RP1 is equal to 1 by 10 plus 1 by 40. LCM ले लेते 40 तो 4 plus 1. So 5 by 40 और 5 by 40 is equal to 1 by 8. तो इससे RP1 8 ओम है. जैसा भी आपको सुविधा हो. यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. 1 by RP2 is equal to 1 by R3 plus 1 by R4 plus 1 by R5. So this is 1 upon 30 plus 1 upon 20, 1 upon 60,
LCM ले लिया 60, 32 जा 23 जा and 61 जा. 2 plus 3, 5 plus 1, 6 upon 60, which is equal to 1 upon 10. So this is 1 upon RP2 is 1 upon 10. So RP2 is equal to 10. क्लियर है बच्चों? तो भाई RP2 ये इसका वैल्यू हो गया 10. आप कह रहे हैं टोटल रेजिस्टेंसेस, ये दोनों RP1 और RP2 आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस R सीरीज इज RP1 प्लस RP2. तो फर्स्ट वाले का है 8, सेकंड वाले कॉम्बिनेशन का 10, 8 प्लस 10 18 ओम हो गया वैल्यू. क्लियर है बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल रेजिस्टेंस निकल गया. अब टोटल करंट निकालना है. इफ यू हैव टू फाइंड टोटल करंट, I is equal to V upon RS. V है 12 वोल्ट, RS है 18. 12 by 18 is 6 2s are 12, 6 3s are 18, 2 by 3 ampere. Is it clear to everyone? Yes, sir. शिवम तुम्हारा भी कैमरा ऑफ हो जाता है रह रहे थे ऑटोमेटिक. Sorry sir, sorry. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेरे कैमरा में भी लगा. नहीं sir. लिखो लिखो. Everyone please write it down properly. मेहुल आ गया समझ? Yes, sir. अतुल्य लिख रहे हो? Yes, sir. लिख लिया. सर ऐसा हो सकता है कि हमें एक रेजिस्टेंस दिया और हमें बोला जाए कि हमें 3 रेजिस्टेंस बनानी. तुमको मतलब बोलेगा कि क्या कॉम्बिनेशन करके तुम इन 3 रेजिस्टेंस से टोटल इतना रेजिस्टेंस ला सको, ऐसा बोला जाए. हम लोग करेंगे वैसा कुछ. मतलब तुम्हें टोटल वैल्यू दिया हुआ, इंडिविजुअल वैल्यूज दिए हुए हैं, तुमको बोलेगा कि कैसे कंबाइन करोगे कि तुमको फाइनल ये वैल्यू मिल जाए. सर तो जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन में सर हमें पहले उसका डायग्राम बनाना होगा सर, उसके बाद प्रूव भी करना होगा. प्रूफ मतलब तुम ऑब्वियसली जब पूछ रहा है तो तुमको निकाल के तो दिखाना पड़ेगा कि नहीं कि आया कि नहीं पूरा. ओके. तो वहाँ ट्रायल एंड एरर से करते हैं, बेसिकली 2-3 कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं. यस सर. सबने लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes sir. Now let's see the third question. An electric lamp of 100 ohm, a toaster of 50 ohm, and a water filter of 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt supply. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all 3 appliances? And what is the current through it? तो पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, फिर टोस्टर है और वाटर फिल्टर है. रेजिस्टेंस R1 दे रखा है 100 ओम, रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू 50 ओम एंड रेजिस्टेंस R3 इज इक्वल टू 500 ओम. Each of these when connected across 220 volt
दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पहले तो हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 1 by Rp, 1 by R1, 1 by 100, 1 by 50, 1 by 500। एलसीएम ले लेंगे 500, 5 times, 10 times, 1 times। So 16 by 500 is 1 upon Rp. Rp is equal to 500 upon 16। 4 4s and 4 125 times, so 125 upon। अब हमें कह रहा है what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances, and what is the current through it। मतलब बेसिकली तुमको ये निकालना था कि अगर एक इलेक्ट्रिक आयरन में इतना ही रेजिस्टेंस होगा तो वो सेम करंट लेगा। So that means you have to find the equivalent resistance, and the electric iron will have the same equivalent resistance, resistance equal to the equivalent resistance of these three devices। Is it clear? See, current in it will be same। अगर इस पूरे को हम अगर सिंगल एक इलेक्ट्रिक आयरन से रिप्लेस करें, करंट सेम होना है तो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक आयरन का और जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है इन तीनों डिवाइसेस का, ये दोनों बराबर होने चाहिए। आ रहा है समझ में? सर फिर अगर हम लोग इन तीनों इस सर्किट में से टोटल करंट निकाल देंगे सर, करंट निकाल देंगे सर, उसका भी करंट सेम होना चाहिए सर इलेक्ट्रिक आयरन से। हाँ वही तो निकालना है ना सेकेंड स्टेप में कि takes as much current as all three appliances। What is the current? So current I will be V upon Rp। So V upon Rp means 220 upon 125 by 4। So ये कैलकुलेट करके अगर हम लोग निकालते हैं, so 220 into 4 divided by 125 7.04। क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लो फटाफट। So when they are asking what is the resistance of the electric iron which takes the same current as all of these three devices connected in parallel, that means this electric iron will have a resistance which is equivalent to the resistance of all three resistances connected in parallel, all three devices। So that's why we have equated it to the equivalent resistance Rp। Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया वही जो अभी हम बात कर रहे थे ना। How can three resistors of 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give a total of 4 ohm? अगर टोटल 4 ohm देना है, हम लोग को टोटल 4 ohm चाहिए और इन तीन रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करके हम लोग को बनाना है 2 ohm, 3 ohm और 6 ohm। तो समझो अभी अगर तुमने तुम्हारा देखो, अच्छा अप्रोच कैसे करेंगे? आंख बंद करके सब कॉम्बिनेशन तो ट्राई करेंगे नहीं, राइट? तो तुम्हारा पहला सर इसमें सर 3 और 6 को सुन लो 2 मिनट सुनो। जब हम कह रहे हैं कि ये 4 ओम है, ये 4 ओम 2 ओम से बड़ा, 3 ओम से बड़ा, 6 ओम से छोटा। अब बिकॉज ये तीनों को अगर पहले सीरीज में करते तो 6 + 3 9 + 2 11 होता। तो 11 ओम तो नहीं आ रहा है ना, तो मतलब कि ये सीरीज में तो नहीं है। अब तीनों को अगर पैरेलल में करते तो 1/2 + 1/3 + 1/6 अगर निकालोगे, 6 एलसीएम लोगे, 3 + 2 + 1 6/6 दैट इज 1 ओम। तो ये 1 ओम, ये वाला का तो आंसर तुमको मिल गया। सेकेंड वाले 1 ओम कब होगा? जब तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर। अब ये 4 ओम ना तो वो हो रहा है सीरीज से आ रहा है ना पैरेलल से आ रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन है दोनों का, मतलब एक रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस ऐसे कंबाइन करेंगे। अगर तुम 2 और 3 को सीरीज में लेते तो 5 ओम हो जाता। तो 5 हो गया तब तो फिर मुश्किल है ना। तो तुम क्या करो, 2 को सीरीज में रखो और 3 6 को पैरेलल में लेके जाओ। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन करेंगे और चेक करेंगे, ऑब्वियसली एक बार में आंसर तो पता नहीं चलेगा, बट वील कैलकुलेट इट एंड फाइंड इट आउट। सो इफ वी कंबाइन इट लाइक दिस,
कि यहाँ पे हम लोग 3 ओम रखें, यहाँ पे 6 ओम रखें और यहाँ पे 2 ओम रखें, ये हो गया तुम्हारा R2, ये हो गया R3 और लेट्स से ये है R1। तो पहले तुम क्या करो ना, ये पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन है RP, इन दोनों रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल में, दैट विल बी 2 into 3 by 2 plus 3, तो 6/5, राइट, सॉरी 3 into 6 है ना, आई एम सॉरी, 3 into 6/3 plus 6, so 3 into 6 is 18/9 which is equal to 2 ohm। और ये 2 ओम क्या है, इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम जो R1 का, R1 plus RP, that is 2 plus 2 which is equal to 4 ohm। so इसका मतलब अगर इस तरह से कंबाइन करें कि 2 ओम को अलग करें और 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में रखें, so then you will get an equivalent resistance of 4 ohm from these combinations। is it clear? Sir, so in this question, we need to apply hit and trial method. Yeah, trial and error, basically hit and trial। Okay, sir. you will have to try with different combination and find। so ये तो A पार्ट का आंसर हो गया। B पार्ट का ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर उनको पैरेलल में करेंगे तो B पार्ट मिल जाएगा। तो B पार्ट के लिए आपको ऐसे बना के दिखाना पड़ेगा, R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to 3 ohm and R3 is equal to 6 ohm। when each of these are connected in parallel, then you get a total of 1 ohm resistance। so this is your B part। लिख लिया बच्चों? No, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है, fifth question is what is the highest and the lowest total resistances that can be secured by the combination of 4 coils of resistances। lowest resistance के लिए क्या करना पड़ेगा इनको? सब पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। highest के लिए क्या करना पड़ेगा? सीरीज में। Series. so for highest, so highest resistance can be secured
by combining the resistances in series, so R series is R1 plus R2 plus R3 plus R5, 4 plus 8 plus 12 plus 24, 48. ठीक है? And B part, smallest total resistance can be secured by combining resistances in parallel. So we have 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4 is equal to 1 by R. 1 by RP is 1 by 4, 1 by 8, 1 by 12, 1 by 24. LCM ले लेते हैं 24. So this is 6 plus 3 plus 2 plus 1. So RP is equal to 24 by 12, which is equal to 2. So this is the lowest resistance. And this is your highest resistance. Please write it down, everyone. Sir, written. सबने लिख लिया? No, sir. Written, sir. अब देखो, हम लोग बात कर रहे थे कि भाई डे टू डे लाइफ में हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं. सो जो हम लोग डेकोरेशन पर्पस के लिए बल्ब लगाते हैं ना, दिवाली में जो वो लड़ी लगती है, तो वहां पे जो बल्ब्स हैं वो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं. और तुम ये भी नोटिस करोगे कि ये जो चाइनीज वाले जो बल्ब्स होते हैं, ये एक फ्यूज हो जाता है थोड़े दिन में और उसके बाद पूरा ही बेकार हो जाता है, राइट. मतलब अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया उसमें से, तो द होल थिंग इज गॉन. व्हाई? बिकॉज सर्किट का जो ना वो कंप्लीट नहीं रहता है. मतलब देयर इज अ ब्रेक इन द सर्किट. द मोमेंट देयर इज अ फ्यूज बल्ब व्हिच इज देयर इन बिटवीन, द करंट विल नॉट पास थ्रू द सर्किट. So bulbs are connected in series for decoration purpose because all the bulbs connected in series can be controlled with just one switch. It is also safer because the current in it is smaller. See, देखो दो चीज है. क्यों हम लोग डेकोरेशन पर्पस में सीरीज में लगाते हैं? अगर मान लो 1000 बल्ब का लड़ी लगा है और सब में स्विच है, तो बेचारा जो ऑन करने जाएगा वो 1000 बल्ब ऑन करेगा. जब तक 1000वां ऑन करेगा शायद सुबह हो जाएगा, तो फिर सब ऑफ करना शुरू. सर बहुत तेज करंट लगता है. हाँ लगता है. तुमने टच किया है क्या लगाने समय? सर बहुत बार. Yes, sir. बहुत बार. अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है कि तेज लगता है लेकिन फिर भी वो फेटल नहीं है, इसलिए तो हम तुमसे बात कर रहे हैं ना. अगर फेटल होता तो अभी हम तुम्हारे मूर्ति से बात कर रहे होते. तो वो इसीलिए वो भी दूसरा चीज है. सेफर क्या है? सी द करंट बिकम्स स्मॉलर.
Why? Because all these resistances of all the bulbs gets added together. So मान लो तुमने 100 बल्ब लगाए हैं, सब में अगर एक एक ओम भी होगा तो 100 ओम हो गया, राइट? 100 ओम रेजिस्टेंस होगा, तो जब आप रेजिस्टेंस ज्यादा रखोगे, वोल्टेज मान लो 220 वोल्ट ही है और रेजिस्टेंस आपका ऐड होके 100 ओम हो गया, तो अब जो करंट होगा वो क्या होगा? I is equal to V upon R. So that means 220 by 100 कर लेंगे, so 2.2 एम्पियर होगा, so which is a less करंट. अगर सिंगल ये 1 ओम का होता है, तब करंट क्या होता? 220 डिवाइडेड बाय 1 ओम, दैट इज 220 एम्पियर होता है. सो 2.2 एम्पियर 220 एम्पियर के कंपैरिजन में बहुत कम है. 220 एम्पियर अगर करंट लग गया तो फिर बस खत्म है कहानी उसका, राइट? बचने की कोई उम्मीद नहीं, बिकॉज द डिवाइस विच वी हैव, जो घर में जो एसी वगैरह लगे होते हैं ना, वो 15 एम्पियर वाले लाइन पे चलता है, और बाकी जो लाइट्स वाइट्स हैं वो 5 एम्पियर वाले लाइन पे चलता है, राइट? तो यू कैन इमेजिन, 220 एम्पियर इज ह्यूज करंट. तो अगर वो पास कर गया तो बॉडी से तो फिर खत्म ही है सब. तो इसीलिए दिस इज सेफ. अगर आप 100 रेजिस्टर सीरीज में लगा रहे हैं तो यू आर मेकिंग द करंट लेसर, and that's why it is safe also. So ये जो बैटरीज होती है सर, उसमें से कितने वोल्ट कितने एम्पीयर का करंट जनरेट होता है जनरली? जो पेंसिल बैटरी होता है, यस सर. तो वो तो 1.5 वोल्ट का रहता है बैटरी. 1.5 वोल्ट में रेजिस्टेंस मान लो तुमने 1 ओम का भी लगाया, तो कितना ही करंट हुआ फिर उसमें? हाँ सर. V by R 1.5 एम्पियर. सर मेरा 12 वोल्ट का. कौन सा बैटरी? पेंसिल बैटरी? नहीं सर, वो थोड़ा बड़ा बैटरी है सर, उससे वो CPU चलता है. वो यूपीएस वाला रहता है, वो सब. हाँ सर, UPS वाला है. हाँ, तो वो वाला जो है वो 12 वोल्ट्स का रहता है, 12 वोल्ट्स का होगा. वो सब डीसी, सर उसका करंट ज्यादा लगता है. वो डायरेक्ट करंट है ना. डायरेक्ट करंट इज ये ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू अल्टरनेटिंग. सो डायरेक्ट करंट का जो वैल्यू है, तुम ये देखोगे कि 12 वोल्ट ही होगा, बट उसको कन्वर्ट हम लोग क्या करते हैं जब यूज करते हैं, तो 12 वोल्ट मतलब जो डायरेक्ट करंट है उसको अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने के लिए वो हम लोग वहाँ पे इन्वर्टर्स लगाते हैं. इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्ट कर देता है, मतलब तुम्हारा जो डीसी है उसको एसी में कन्वर्ट कर लेता है और एसी को डीसी में कन्वर्ट कर. जब तुम चार्ज कर रहे हो तो ये जो हम लोग घर में यूज कर रहे हैं वो अल्टरनेटिंग करंट है, उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है. और जब चार्ज होके हम लोग जब यूज करते हैं उसको, तो डायरेक्ट करंट को वापस वो अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो देयर इज एन इन्वर्टर विच इज देयर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि चार्ज करने के लिए यूज करता है, राइट? बैटरी को चार्ज करने के लिए इन्वर्टर के साथ लगाना पड़ता है ना तो चार्ज है. यस सर. Yes, sir. ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, है ना? तो हम लोग सब लोग फिर इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे और हाथ में सारे जितने सोसाइटी में जितने इलेक्ट्रीशियन है सबका नौकरी खा जाएंगे. मेरे I am basically an electrical engineer, electrical and electronics engineer. So this is my core branch. ठीक है, तो जो ये सोसाइटी में आते हैं ये ठीक ठाक करने के लिए, तो इतने महान सब हैं कि एक ने तो मतलब एक भी जो स्विच है अगर आप खोल के देखोगे इसमें एक में भी अर्थिंग का कनेक्शन नहीं किया हुआ रहता, एक में भी अर्थिंग का कनेक्शन नहीं. आधे तो ऐसे हैं जो कि दोनों में पॉजिटिव लाइव कनेक्शन जोड़ के चले जाते हैं, मतलब कि अगर तुम कुछ लगाओगे तो चलेगा ही नहीं क्योंकि दोनों लाइव के साथ जोड़ दिया है. मतलब बहुत एकदम टिकरमी लोग सब हैं ये सब. मतलब दे ऑल डू दैट, जो हिट एंड ट्रायल वाला है ना वही मेथड पे चलते हैं. तो बी वेरी cautious when these guys come to your home. चल गया नहीं चला दोबारा रिपेयर करवा लेंगे. नहीं चला तो आपका यही खराब है, कुछ खराब है, कुछ बोल के चला जाएगा कि आपका ये खराब है इसको चेंज करो. तो बाद में पता चलता है कि दोनों लाइव से जोड़ के कह रहा था कि नहीं चल रहा है. एनीवेज, सो सीरीज में जो कनेक्ट करते हैं, there is a problem in this series lighting circuit. So if one bulb gets fused, then the circuit breaks and all the bulbs are turned off, and one has to spend a lot of time in locating the fused bulb from among the hundreds of bulbs. अब तो खैर
चाइनीज वाला आता है 50 रुपए का आता है, लड़ी को ही फेंक दो, 15 रुपए का आता है, नया दूसरा लड़ी खरीद लो. That is the easiest way to do, because you cannot repair these kind of bulbs which comes from China. But when we used to be of your age, तो हम लोगों के ना वो एक लीची वाला बल्ब आता था. बेसिकली उसके ना सारे पार्ट पुर्जे अलग अलग आते थे. मतलब वो उसका कवर अलग आता था, उसके अंदर का बल्ब अलग आता था, और हम लोग उसको जोड़ जोड़ के बनाते थे लंबे लड़ी. बेसिकली वायर्स खरीद के लाते थे, एंड देन वी यूज्ड टू डू ऑल दिस इंजीनियरिंग. तो वहां पे क्या होता था कि वो सारा मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट था. अब उसमें क्या है कि अगर कोई बल्ब फ्यूज हो गया तो you have done so much of hard work in creating that thing, right? तो तुम उसको तो फेंक नहीं सकते नहीं हो, right? तो हम लोग क्या करते थे, वो एक टेस्टर होता है. Have you seen a tester which tells you? यस सर, एक स्क्रू ड्राइवर होता है, जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी पे डालो तो वो पीछे से बल्ब जलती है. बल्ब जलता है, हाँ, वही टेस्टर होता है. तो बेसिकली हम लोग क्या करते थे, we used to go in each of the bulbs and check till where the current is coming. तो जब वो करंट जहां तक आ रहा है मतलब वहां तक बल्ब ठीक है. जिसके आगे करंट में वो बल्ब नहीं जल रहा है टेस्टर का, मतलब उसके आगे करंट नहीं फ्लो कर रहा है, दैट बल्ब इज फ्यूज्ड. सो वी यूज्ड टू लोकेट, मतलब 100 बल्ब में ऐसे अंदर डाल डाल के देखते थे. और ये जो कह रहा है ना जैसे करंट लगता है बहुत जोर का, तो उसको टच करने में ना बहुत बारी हमें भी लगा है. मतलब बिल्कुल एकदम दिमाग झंझना जाता था. तो उसको फिर पूरा सारा देख के, एंड देन वी यूज्ड टू लोकेट, और उसको फिर चेंज करते थे बल्ब को, एंड देन द होल थिंग यूज्ड टू वर्क. तो ये पूरा जो दिवाली का पूरा जो 2 हफ्ता था ना, ये हमारा टाइम इसी में जाता था. लगता था कि हम लोग पता नहीं कोई साइंटिस्ट बन गए. मतलब we used to consider ourselves as if we have developed something. है ना, बाद में अब पता चलता है कि ये चाइना वाले 15-15 रुपए में बना के बेच रहे हैं. बट हाँ, उस समय बड़ा सेंस ऑफ प्राइड रहता था कि we did something. अगर एक बल्ब आपने लोकेट करके चेंज कर दिया, है ना. घर में मम्मी भी बड़ा ये बोलती थी कि बहुत अच्छा, मतलब ऐसे इतना बड़ाई करती थी, लगता है कि भाई साहब मैंने सही में कुछ जंग जीता है. तो मुझे याद है, तो ये जो कह रहे हैं ना कि you have to spend a lot of time in locating the fuse bulb out of those 100 bulb. I remember it takes 2-3 hours to get that, right? So this is what is mentioned here. The third point says the parallel. तो अब हमारे पास सीरीज के 2 फायदे हो गए और नुकसान भी हो गए, है ना. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर हमसे पूछेगा तो पहला एडवांटेज ये है कि आप जो when you are using these bulbs for decorating purpose, you can switch on and switch off the whole series of bulbs only with one switch. You don't have to switch on these 100 bulbs, separately. Second, because these are connected in series, the total current is less, so there is less chance of, or it is safer to use, right? और disadvantage क्या हो गया, even if one of the bulb fuses, then you have it will take a lot of time for you to locate that bulb and replace that bulb, right? The whole series will stop working the moment one of the bulb fuses. तो ये इसके advantages और disadvantages. Now parallel circuit is better for connecting bulbs and other. हम लोग घर में जो use करते हैं household circuits में, so we use parallel circuit. So this is because each of these devices should be operated by a separate switch. ऐसा थोड़ा ना कि रूम में घुसे एक बल्ब जलाया और सारा चीज एक साथ में जल गया. चाहे ठंडा हो गर्मी हो, एसी चल रहा है और साथ में वो हीटर वीटर सब कुछ एक साथ ही चल गया. तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना. every device should have a separate switch, right? So for that you will have to connect it in parallel so that you can separately switch it on and switch it off, right? So that's why the connection which we are using in our household purpose, that is a parallel circuit combination. Okay? Okay. चलो आज हम यहीं पे रुकेंगे. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. नेक्स्ट क्लास I think we'll be able to finish this chapter, and there is only few slides left, and then we'll start with the assignments. So there are huge number of questions in the assignments, so be ready for it, and they are difficult ones. So I'll be doing all those difficult questions of circuits. So don't miss the classes when I am doing the assignments. Okay, sir. So take a break of 5 minutes. We'll join for maths after. Thank you, Okay, sir. sir. Bye. Okay, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.